Hello friends, I Saloni Agrawal welcome you all in my first class of chapter first, that is nature and purpose of business. Before starting, I want to tell you something that please make one separate copy for my class, and whenever you watch my video, have it for sure with you and at least two colors pen. Make notes at the time only. It will definitely help out you in the examination time. Now let's start with the chapters. So come on the introduction part. We all know that all human beings, whenever they are required to perform some activities, some of them they are doing for satisfy their needs, or some of them they are doing to earn their livelihood. Any one of you know what are these activities known as? I'm going to telling you that activities which human beings undertake are known as human activities. Means जो भी human beings काम करते हैं या जो भी activities human beings करते हैं उसको हम human activities कहते हैं, है ना. Human activities हमारी बहुत सारी होती है. Some of them are just to earn the money or some of them are just to derive the personal satisfaction. For example, हमारी मम्मा हमारे लिए फूड कुक करती हैं, तो क्या उनकी कोई अर्निंग होती है या वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो एक्टिविटी करती हैं? नो. आवर मॉम वॉशेस आवर क्लोथ्स, doing the cleanliness of the home, making food for us. So these all are the activities which our mama do for us for her personal satisfaction और for her psychological satisfaction. ऐसे ही हम लोग टेम्पल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए नहीं करते हैं. ये सारी चीज़ें हम किस लिए करते हैं? अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. बट हमारे पापा ऑफिस जाते हैं या फिर कोई शॉप रन करते हैं या डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, तो ये सारी एग्जाम्पल्स किसके हो गए? जो वो करते हैं एक्टिविटीज़ फॉर द अर्निंग देयर लाइवलीहुड. ओके, so these are our introductions. Now come on the next topic are basically human activities differentiate in two parts: economic activities or non-economic activities. Now economic activities further divided into three parts, that is business, profession and employment. Non-economic activities further divided into three parts, that is religion, parental or social. Now come on the economic activities. What are economic activities? Economic activities are those activities which are undertaken by the persons with the objective of earning money. ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हमारे पापा शॉप रन कर रहे हैं या फिर डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या फिर वो किसी फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस लिए हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो दीज एक्टिविटीज़ बेसिकली कंसर्न विद दीज फोर सेक्टर्स: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब आप लोग सोच रहे होंगे इनसे क्यों कंसर्न करती हैं? बिकॉज अगर किसी भी फैक्ट्री में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो फर्दर सेल के लिए हो रहा होगा. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इन रिटर्न ऑफ मनी कर रहे होंगे, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इन रिटर्न ऑफ मनी कर रहे होंगे. तो ये these all activities are known as economic activities. I am going to show you some examples of economic activities. देखिए आप लोग की स्क्रीन पर कुछ पिक्चर शो हो रही होंगी, जैसे कि फार्मर है, डॉक्टर है, ठीक है, फैक्ट्री की पिक्चर भी एक शो हो रही है. तो दीज ऑल आर व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्योंकि ये लोग सब जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी का कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? फॉर अर्न मनी. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंशिएट, or we can say that ki classification of economic activities. I have already told you na about three classification of economic activities in this page, that economic activities further consist in business, profession and employment. Now come on the first part, types of economic activities, that is business. Okay, so business refers to those activities, those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit.
मैंने इस पॉइंट को इसीलिए हाईलाइट किया है बिकॉज अर्निंग ऑब्जेक्टिव इज द मेन मोटिव और बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बिजनेस में हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि हम एक्टिविटीज़ रिलेटेड है हमारे किसी भी प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजिली आपके 2 मार्क्स में डेफिनेशन फॉर्म में भी आ सकती है, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में, या फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल फॉर्म में दे सकते हैं, केस स्टडी फॉर्म में, कि आपका एग्जाम्पल आ जाएगा कि दिस 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 दिस, आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये कौन सी एक्टिविटी है, बिजनेस है, फर्स्टली इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, इफ इकोनॉमिक है तो फर्दर कौन सी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो दीज आर बेसिकली important key features that production, purchase, sale और distribution of goods and services। इसमें एक exchange भी हो सकता है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। exchange लिखना रह गया है यहाँ पे, exchange भी हो सकता है, note it down, okay। now let's come on the next topic, that is profession। Profession refers to the activities which require special knowledge, skill applied by an individual in his work to earn a living। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि विद सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। क्योंकि बिजनेस हम करते हैं तो वो या तो हम एंटरप्रेन्योर की विश से करते हैं, एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, जो बिजनेस खुद कर रहा है, तो बिजनेस तो हम अपने खुद की विश से करते हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन पे करते। बट प्रोफेशन में प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो हमेशा किन चीज़ों पे वर्क करते हैं, किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जो भी गाइडलाइंस या कोड ऑफ कंडक्ट कौन उनको प्रोवाइड करवाता है, प्रोफेशनल बॉडी। वन मोर थिंग, the people who are engaged in professions are known as professionals, like lawyers are professionals who engaged in the legal professions governed by the bar council of India। तो governed by the bar council of India means कि जो भी गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, लॉयर्स को उसको फॉलो करना पड़ता है। सेकेंडली डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशंस एंड आर गवर्नड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, got it? What is profession? Professions refers to the activities which require special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living, with subject to guidelines and code of conduct laid by the professional bodies। Okay, now come on the next topic, employment। What is employment? Employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and gets remunerated in return। ओके, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंडिविजुअल काम करता है रेगुलरली किसी दूसरे पर्सन के लिए और इन रिटर्न उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। देयर वन थिंग, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, ओके, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज। और okay, the person who engage others to work regularly for them are known as employer। means अगर मैं किसी को काम पर रख रही हूँ, अपने किसी को engage कर रही हूँ for my work, तो means मैं employer हुई और सामने वाला person कौन हुआ? employee हुआ। in return मैं उनको क्या दूंगी? सैलरी या फिर wages। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को इन रिटर्न में क्या देता है? लिखा है ना, गेट रिन्यूमरेटेड इन रिटर्न। तो रिन्यूमरेटेड, तो जो एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो भी रिन्यूमरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैलरी या फिर वेजेस। वन मोर थिंग, प्रोफेशन में जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? दैट इज फीस। ओके, दैट इज फीस। और बिजनेस में जो हमको अर्न होता है वो दैट इज प्रॉफिट। व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है, तो इसी तरह जो बिजनेस में हमको अर्न होता है वो प्रॉफिट कहलाता है, प्रोफेशन में जो हमको अर्न होता है वो फीस कहलाती है, जो एम्प्लॉयमेंट में हमको मिलता है वो सैलरी और वेजेस कहलाता है। नाउ कम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपको बताइए, देखिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं डिफरेंस में, आप लोग ईजिली लिख सकते हो।
आप मुझे एक बात बताओ, बिजनेस है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे हम? जब एंटरप्रेन्योर की मर्जी होगी। हु आर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस और हु कमेंस द बिजनेस और हु इन्वॉल्व इन सम बिजनेस एक्टिविटी। तो जब भी एंटरप्रेन्योर की मर्जी होगी वो बिजनेस होगा। जब हम कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले लेंगे या फिर हम कोई पर्टिकुलर एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे और देन हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोफेशन। कोई भी इंडिविजुअल सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट पे जब किसी और के लिए काम करता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो हमें कमेंसमेंट में डिफ्रेंसिएशन इजीली आ गया ना। तो बिजनेस क्या हुआ? बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री और कोर्स गेटिंग बाय सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग टू अ सर्विस एग्रीमेंट। ओके, आप लोग ने ये सब चीज़ें नोट डाउन कर ली ना? Please make sure you make copy and make the notes at the time of my watching video only. It will really help out you. I'm saying again and again, make copy and write down everything I'm told you in the video only. Okay, now come on the next, क्वालिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया बिजनेस में क्या किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। प्रोफेशन में ऑफ कोर्स होती है ना, पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ट्रेनिंग। और एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब की हमको ज़रूरत है या नहीं। अब हम MBA करके जॉब कहीं करने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर इंडिविजुअल दूसरे के लिए जॉब करता है, बट वहाँ पे उस जॉब के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है। बट पर्सन किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, उस लेबर को इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत बिजनेस में होती है ना, अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ बिजनेस। बट प्रोफेशन में हाँ लिमिटेड आप कह सकते हो, क्योंकि आपको वो डिग्री लेने के लिए फीस का खर्चा करना पड़ता है। बट एम्प्लॉयमेंट डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ एक चीज़, मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड द सर्विस, है ना। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। बट वो हमें कब मिलती है? जब हम अपने एम्प्लॉयर को सही से सेटिस्फाइड कर पाते हैं तब। अब कोड ऑफ कंडक्ट, क्या बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत होती है? नहीं होती है। प्रोफेशन में ऑफकोर्स होती है ना। और एम्प्लॉयमेंट में हाँ, एम्प्लॉयमेंट पे हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक 9 पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, रिवॉर्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिजनेस में हमको प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन को फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमको सैलरी या फिर वेज मिलता है। रिस्क आता है हमारा, रिस्क ऑब्वियसली बिजनेस में अनसर्टेनिटी रिस्क बहुत होता है। प्रोफेशन में बहुत लिटिल सा रिस्क प्रेजेंट होता है कि अब हम डॉक्टर बनकर बैठ गए, लेकिन 1% अगर हमारा प्रोफेशन नहीं चला तो, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में हमारा कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ बिजनेस में हम अपने पार्टनर्स को बना सकते हैं, है ना, तो शेयर कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट पॉसिबल है। लेकिन प्रोफेशन में अगर मैं डॉक्टर हूँ तो ऑब्वियसली मैं ही डॉक्टर रह सकती हूँ, मैं किसी को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और एम्प्लॉयमेंट में तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, है ना। तो आप लोग को कमेंसमेंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक वेरी इजीली। कमेंसमेंट क्या है? जब एंटरप्रेन्योर की मर्जी हो, या प्रोफेशन में जब हम लोग अपना डिग्री कंप्लीट कर लें, और एम्प्लॉयमेंट पे जब हम किसी सर्विस एग्रीमेंट में एंटर कर लें। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, बिजनेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशन के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशन में बहुत कम होती है, और एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है। रिस्क भी मैंने आपको बता दिया, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। ट्रांसफर इंटरेस्ट में मैंने आपको बता दिया, बिजनेस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज, प्रोफेशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और एम्प्लॉयमेंट भी हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आपको बता दिए, बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, सर्विस प्रोफेशन टू प्रोवाइड सर्विस, और एम्प्लॉयमेंट टू अर्न सैलरी बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयर। और कोड ऑफ कंडक्ट मैंने आपको बता दिया कि no prescribed code of conduct for business. Code of conduct is prescribed by the professional associations under the profession, or the terms and conditions and of services contract are applicable on employer by the employer. नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व ऑफ कोर्स, बिजनेस में मैंने आपको याद हो तो बताया था कि प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। और एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। और रिवॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड
peace. Reward for employment is called salary or wage. Clear all of you with all these topics? Business, profession, employment, their differentiations. Okay. If you all want to revise, then I am going to tell you further. Economic activities are those activities which are undertaken by people with the object of earning money. Okay. Business refers to those economic activities which are concerned with the production, purchase, sale or distribution of goods and services. Professions refers to the activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. Employment refers to an activity in which an individual works regularly for another person and get remunerated in return. डिफ्रेंसिएशन क्या क्या है पॉइंट्स, की पॉइंट जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लीजिए. कमेंसमेंट, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मेन ऑब्जेक्टिव, कोड ऑफ कंडक्ट, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड, रिवॉर्ड. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Activities which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction, okay, are known as non-economic activities. For example, going to temple, charity, social services, production for self-consumption. These all are those activities which we are not doing for the earning of money. These activities are those which we do for our personal satisfaction. So now there's a basically one differentiation between economic activity and non-economic activities are those. It basically depends on our motive, whether it's for earning purpose or it's for psychological purpose. Basically end result is monetary or not. अगर monetary है means वो economic है, और अगर non monetary है तो वो क्या हो गया, non economic activity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फोकस करके बार बार आप लोग को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक डेफिनेटली आ ही जाता है. मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आपका फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक वैसे आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मिला के 16 मार्क्स कवर कर, तो इस फर्स्ट चैप्टर में से आपको ज़्यादा नहीं तो 6 मार्क्स का तो मिनिमम मिलना ही मिलना है एग्जाम में, और 6 मार्क्स में ये टॉपिक आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है. नाउ वन थिंग मोर, फार्मर्स हैं. फार्मर्स डूइंग or farmers produce something, या farmers cultivating crops for their self consumption. These activities are known as non economic activities because they are not doing further sale, they are just earned for their self consumption. But on the other case, if farmers are cultivating crops for further sale, so these are economic activities, as well as vice versa with the teacher. If teacher teaches to his own child or to her own child, it means they are doing for their psychological satisfaction. If teacher teaches to the students for earning some fees, it means he or she involved in the economic activities. Okay. Now some point of differences of economic and non-economic activities also are there. Okay. तो मोटिव, वही मैंने आपको बताया, इफ मोटिव आपका अर्निंग मनी है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और अगर आपका मोटिव जो है साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फेक्शन है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. अगर हम बदले में मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक, और मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पर्पस, अगर हम इन एक्टिविटीज़ को क्रिएशन ऑफ वेल्थ के पर्पस से या टू अर्न अ लाइवलीहुड कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट अगर हम इसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आउटकम क्या होता है हमारा, द आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसका हो गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का. बट आउटकम ऑफ दीज इज मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक दैम, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एग्जाम्पल्स आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को खुद पता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हमारे सिंपल, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बट नॉन इकोनॉमिक के क्या हैं, फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हो गई, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो गई, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़ हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई. तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब हमारे हो गई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. मोटिव, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद अ सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव. एक्सपेक्टेशंस, money income is expected from these activities are known as economic activities, or money income is not expected from these activities, these are non-economic activities. Purpose, the purpose of these activities is creation of wealth. The purpose of these activities is creation of
Nothing. The purpose of these activities is psychological satisfaction. These are known as non-economic activities. The outcome of these activities is production of goods and services are known as economic activities, or the outcome of these activities is mental satisfaction of persons who undertake them. Examples आप लोग को पता ही हैं. Okay, now I want to give you all one advice. Please read at least twice from your books all these topics and do revisions regularly. Recall your headings. Okay, these all are very much help out you in your examinations. I hope you all are completely understand with these topics which we are discussed today. Still, if you have any query, you can ask me in comment box. That's all for today. Thank you for watching. See you soon, guys, with next topics of the chapters. If you have any query, please ask me in the comments. Okay, bye bye.